Hello guys, myself Chaitanya Kolte and I'm again back with engineering mechanics video. I know I've taken 2 days long for posting the videos, but when I'm concerned with today's dedication, I'll be sending you more six videos, and after that we'll have a short that is live session on YouTube channel, and there I'll be giving you tips for the scoring and all. बट मेक श्योर जितने भी वीडियोस मैं सेंड कर रहा हूँ वो कल 9 o'clock तक आप पूरा go through करो. Okay, so the hard part I have done it, and when I'm concerned with the easy part, the conceptual part, जो एक बार concept समझ गया तो भी आ जाता है, तो वो अभी आपको करना है. And thanks a lot. I'm really grateful that you're liking the videos, you're giving good views, as well as you're commenting as well. I'll need more support from your side so that I'll be motivated to post more such content from my side. Okay. So without wasting any further time, we are starting with the wedge friction. Wedge friction is a topic for 8 marks, and when you're concerned with this 8 marks, एक तो wedge friction आ जाएगा या फिर ladder friction. So you can expect a ladder friction video after this. Okay. Now when I'm concerned with the further part, this topic is asked for 8 mark. We need to know the basic conditions of equilibrium used for wedge friction. So wedge friction में आपको simple summation of fx equal to 0, that is right side जाने वाला positive and left side one is negative, that you should be known. And the second condition, that is summation of fy equal to 0 and up, that is upward positive and downward negative, is the sign convention. It is fixed for a summation of fx and fy. तो इधर समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 ही यूज होता है. ये इक्विलिब्रियम का एक्सटेंडेड पार्ट है, दैट इज फ्रिक्शन. ओके, the basic concepts when you're concerned with the wedge friction is nothing but the convergent and divergent. Convergent divergent ये दोनों कंसेप्ट यूज होता है. अगर नहीं हो रहा है मतलब कुछ गलत है. ओके, कन्वर्जेंट मतलब क्या, एक पॉइंट पे आने वाला, दैट इज कन्वर्जेंट. एक पॉइंट से डाइवर्ज होने वाला, दैट इज डाइवर्जेंट. सो दिस में बी अ कन्वर्जेंट. ओके, दिस इज कन्वर्जेंट. तो एक पॉइंट की तरफ आना है, सो दैट इज अ कन्वर्जेंट कंसेप्ट. एंड व्हेन यू आर कंसर्न विद अ डाइवर्जेंट, तो एक पॉइंट से जनरेट होने वाला. ओके, एक पॉइंट से जनरेट होने वाला, सो दैट इज अ डाइवर्जेंट. Okay, so convergent, divergent, both this concept are used for drawing the free body diagram. That's the most highest priority पे रखना है उसको. Then the free body diagram use the condition of equilibrium, that is summation of fx equal to 0, fy equal to 0 on the free body diagram to solve the further problem. But the free body diagram plays a major role over here. In this 8 marks, out of this 8 marks, 3 marks आपका एफबीडी पे ही रहेगा. जैसे बीम्स में 3+5 का 8 का डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर भी फ्री बॉडी डायग्राम में 3+5. 3 marks for what we say the free body diagram. The examiner पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एग्जामिनर पहले आपका एफबीडी देखेगा. सॉरी, एफबीडी अगर परफेक्ट है तो ये आगे का प्रॉब्लम चेक होगा. इवेंचुअली आफ्टर द कैलकुलेशंस यू विल गेट सम आंसर. तो वो बराबर रह सकता है या फिर गलत रह सकता है, बट उधर गलत है तो उधर 2.5, या फिर एग्जामिनर अगर दिल खुलास इंसान है तो 3 मार्क्स तो दे देगा. मतलब 3+3 मिनिमम इधर 6 मार्क्स निकालना चाहिए. और इन केस आप मैंने जो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल दिए हैं वो आप कर रहे हो तो 3+3+2 कैलकुलेशन परफेक्ट कर दो, यू विल गेट 8 मार्क्स. ओके, दिस इज अ कंफर्म मार्क्स. सो एप्लीकेशन, आपको वेज का एप्लीकेशन मालूम रहना चाहिए. एज इन व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद द वेज एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड टू शिफ्ट अ हैवी लोड और एल्स लिफ्ट अ हैवी लोड. मतलब इसका दो ही एप्लीकेशन है, शिफ्ट और लिफ्ट अ हैवी लोड. मतलब क्या, वेज फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल में एक वेज रहेगा जो लिफ्ट या फिर शिफ्ट करेगा और एक हैवी लोड रहेगा. मतलब आपको समझा रहेगा कि वेज जो है वो कम लोड रहेगा, मतलब इट वोंट बी अ हैवी पार्ट,
वो सिर्फ वेज की मदद से हम लोग लिफ्ट करते हैं या फिर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो लिफ्ट और शिफ्ट का ये एप्लीकेशन रहना चाहिए। एंड दिस आर द आवर फ्री बॉडी डायग्राम इज एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, एज इन आपको फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या यूज करना है, कन्वर्जन डाइवर्जन का कंसेप्ट, फिर बाद में फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द मोशन। तो मोशन डिटेक्ट करने के लिए यू हैव टू what we say, you have to analyze the wedge मतलब जो कम लोड वाला या फिर बिना लोड वाला इज द वेज और हैवी लोड को जज कर दो, फिर आपको मोशन समझेगा। मोशन समझने के बाद यू हैव टू draw the free body diagram with the help of this few steps, that is 6 steps. So I have written it, that is separate the wedge and the heavy load. हैवी लोड और वेज मिल गया, तो वेज के मोशन के ऊपर हैवी लोड लिफ्ट होता है या फिर शिफ्ट होता है वो देखना है। एनालाइज द मोशन ऑफ द वेज, ओके, वही मोशन ऑफ द वेज। अप्लाई द वेट रिएक्शन, वेट अगर वेज का दिया है तो वेज का अप्लाई करो, अगर वेट हैवी लोड का दिया ही रहेगा, हैवी लोड का कभी कभी निकालने भी बोलते हैं, सो वैसे भी प्रॉब्लम आता है। सो वो वेट रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस सरफेस, वो याद रखना है। फिर नॉर्मल रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्शन सरफेस। तो फ्रिक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन आपको डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस ऑफ द फ्रिक्शन यू विल गेट नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना है। सिमिलरली फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द इंपेंडिंग मोशन। इंपेंडिंग ये वर्ड क्या है, अभी बीच में कुछ जनवरी में आया था कि कोविड इज जस्ट इम्पेंडिंग, मतलब इट इज जस्ट राइजिंग, ठीक है। मतलब इधर हम लोग लिए वही टर्मिनोलॉजी। तो इम्पेंडिंग मतलब जस्ट वो मोशन स्टार्ट हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है, मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है, ओके। सो दैट इज द इम्पेंडिंग मोशन। तो इम्पेंडिंग मोशन के बिल्कुल अपोजिट आपका फ्रिक्शन रहेगा। फ्रिक्शन को रिजॉल्व करना है और लास्ट स्टेप में डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन मिलता है, दैट शुड बी अपोजिट टू द इम्पेंडिंग मोशन। ये चेकिंग पार्ट करना है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद द न्यूमेरिकल, तो आपको डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, वो याद रखना है, ओके। नाउ there are two blocks over here, that is block A and block B, okay, are resting against the wall and floor. So this is the wall and this is the floor surface, okay, as shown in the figure. This is the figure. Find the minimum value of P. So this is the minimum value of P, okay. तो ये P है, वैल्यू ऑफ P, that is hold the system in equilibrium, मतलब ऐसे ही होल्ड होना चाहिए। So take mu 0.25 at the floor. At the floor it is 0.25, so mu is 0.25 at the floor. I've written that part. Then mu is 0.3 at the wall, so this is the wall surface. The coefficient of the friction is 0.3 over here, and mu is 0.2 between the blocks. So between the blocks, that is between block A and B, it is 0.2, okay. तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज वैरिंग फॉर द सरफेसेस। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू आपको सरफेस के हिसाब से वैरी हो रहे हैं। दे हैव क्लियरली स्टेटेड ओवर हियर, फॉर द फ्लोर इट इज 0.25, बिटवीन द ब्लॉक्स इट इज 0.2, and at the wall surface it is 0.3, okay. So what we'll do is, according to the this part, will separate the wedge and the heavy load. अभी मुझे heavy load गेस करने में बहुत ही सिंपल है। जो ज्यादा वेट है that is nothing but a heavy load. So this is 500, this is 1000. That indicates the 1000 Newton is a heavy load, and what we say 500 Newton is nothing but a वेज, ओके। तो वेज मोशन लेता है और फिर वेज का यही प्रॉपर्टी रहता है कि वो लिफ्ट या फिर शिफ्ट करता है, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। नाउ सी ओवर हियर, व्हाट आई विल डू इज आई सेपरेट द wedge
and the heavy load. So now see, I've identified this part. So this is wedge A क्योंकि उसका वेट कम है, and this is heavy load B. So this is also important. I'll just इधर अपना रिएक्शन आ जाएगा, इसलिए थोड़ा नीचे लिखता हूँ. ओके, तो दोनों को अलग से समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई निकालना है, तो मैं इधर एक सेपरेशन लाइन रखता हूँ. ठीक है. नाउ सी, when I'm concerned with the surface of the friction part, now touch surface किधर हो रहा है? फ्लोर एंड हेवी लोड, इसके बीच फ्रिक्शन है. देन बिटवीन द ब्लॉक, इसके बीच फ्रिक्शन है. एंड बिटवीन द फ्लोर एंड द वेज, इसके बीच फ्रिक्शन है. ठीक है, मतलब क्या? मोशन डिटेक्टेड है. अब ये मोशन कैसे होगा, ये देखना व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद द मोशन, तो मोशन, अभी ये पी को पकड़ोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका जो व्हाट वी से इंपेंडिंग मोशन ऑफ द वेज इज इंपॉर्टेंट, उसके हिसाब से हैवी लोड लिफ्ट होता है या फिर शिफ्ट होता है. ठीक है, तो अभी ये देखना, ये हैवी लोड है, ये हैवी लोड है. ठीक है, तो बट नेचुरल ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो वर्टिकल, हमेशा वर्टिकल सरफेस पे रहेगा आपका वेज, सॉरी हैवी लोड, तो वो लिफ्ट होगा. समझा? वर्टिकल सरफेस पे लिफ्ट होगा और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे शिफ्ट होगा. मतलब लिफ्ट और शिफ्ट का ऑपरेशन आपको मालूम रहना चाहिए. तो इसलिए वी हैव डन अ सिंपल पार्ट, वर्टिकल मतलब लिफ्ट, हॉरिजॉन्टल मतलब शिफ्ट. ओके, तो मैंने क्या देखा, ये जो 1000 न्यूटन है, इट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब ये शिफ्ट होगा. ठीक है, अभी शिफ्ट करते वक्त भी कैसे हो रहा है, ये 1000 शिफ्ट हो रहा है, ये पी को पकड़ना नहीं है. तो ये देखना, व्हेन योर वेज विल कम डाउन, तब जाके आपका जो हैवी लोड है वो राइट साइड शिफ्ट होगा. मतलब मोशन, मैंने इंपेंडिंग मोशन ब्लॉक वेज ए का डिटेक्ट किया है, सो इट इज डाउनवर्ड, आई एम स्टैंड फॉर इंपेंडिंग मोशन, एंड ये राइटवर्ड है, हैवी लोड राइटवर्ड है, सो दिस इज द इंपेंडिंग मोशन. ओके, सो वी हैव डिटेक्टेड द इंपेंडिंग मोशन. क्यों? बिकॉज इसके अपोजिट करने जाओ, ये इधर जाएगा तो ये ऊपर नहीं जाने वाला है. ओके, बिकॉज हैवी लोड तो शिफ्ट ही होने वाला है. शिफ्ट कैसे होगा, ये जब नीचे आ जाएगा तब जाके ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा. तो आई हैव फर्स्ट फाउंड आउट द इंपेंडिंग मोशन ऑफ द हैवी लोड एज वेल एज द वेज. वेज का काम क्या है? शिफ्ट करना या फिर लिफ्ट करना. तो इधर शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी है. शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी कैसे देख लिया, हैवी लोड हॉरिजॉन्टल पे है तो शिफ्ट होगा, हैवी लोड वर्टिकल पे है तो लिफ्ट होगा. ओके, तो ये था अपना इंपेंडिंग मोशन का कंसेप्ट. नाउ विल स्टार्ट विद द number of surfaces as in number of contact surfaces are floor and 1000 newton, 500 newton and 1000 newton, 500 newton and the wall surface. तो इतने तीन रिएक्शन है, बट आपको अननोन की तरफ जाना है. अननोन इज P over here. They are saying find the minimum value of P. We have to find the minimum value of P. तो आपके surfaces देखना, this will be first surface, this will be second surface and this will be the third surface. When you are concerned with the normal reaction, it is perpendicular to the surface. ठीक है, it is perpendicular to the surface. Now when I am concerned with the normal reaction over here, so this is the first normal reaction, this is the second normal reaction, this is again the continued, that is second normal reaction, and this is the third normal reaction. तो simple है, simple ही रखना है. So what I have done is perpendicular to the base surface, that is N1. We have N1 now. Similarly, perpendicular to the surface, we have N2. Similarly, perpendicular to the surface, we have N2 because it is the common surface, and perpendicular to the surface, we have N3. ठीक है,
और सबसे पहले वेट पार्ट लगा देना है। तो मैंने पहले नॉर्मल रिएक्शन ले लिया, आफ्टर दैट गो फॉर द वेट रिएक्शन। वेट हमेशा सेंटर पे एक्ट करता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट इज 500 न्यूटन। नाउ द वेट on the center, this is 500 newton for a wedge, and for the heavy load it is 1000 newton. ओके, सो हम लोग ने फर्स्ट ये किया है, वी हैव सेपरेटेड द वेज एंड द हैवी लोड, we have analyzed the motion of the wedge. Okay, we have applied the weight reaction, we have also done the normal reaction, applied normal reaction, only the resolution of the normal reaction is remaining. So resolution of normal reaction, now the conditions over here is quite simple, summation of fx equal to 0 and fy equal to 0. Okay, so all the forces should be in x and y. Summation of fx represent addition of all the forces in x direction. Similarly, summation of fy force, summation of fy is nothing but addition of all the forces in y direction. तो वैसे ही आपको सब x और y में ही रिजॉल्व करना है। तो ये देखना, दिस इज इन x direction, this is in y direction, but the n2 is not in the direction of x and y, it is inclined. तो इसको रिजॉल्व करो। रिजॉल्व करने के लिए we need the angle over here. Now the wedge angle is provided, that is 60 degree. We will use this 60 degree to get the required part. तो ये देखना, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ वो देखना, इधर से परपेंडिकुलर निकाला। ओके, सो परपेंडिकुलर निकाला, दिस इज 90, गेटिंग इट, दिस इज 90, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर टू द बेस सरफेस है तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। मतलब क्या लॉजिक बनता है देखना, आई शो इट अगेन, डोंट वरी। नाउ सी, मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री तो ये 60 डिग्री है, 90 में से 60 माइनस हो गया तो ये 30 डिग्री हो गया। एवरीवन क्लियर विद द 30 डिग्री? एंड व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। परपेंडिकुलर मतलब ये बट नेचुरल 90 हो गया। ओके, and this will be 60 because due to inscribed angle triangle 180 minus 30 minus 90 it is 60। तो ये 60 डिग्री आ गया। बट आपको मैंने कैसे बताया वो आया वो बता दिया, बट वो लॉजिक मत यूज करो। यूनिवर्सिटी इज ओनली कंसर्न्ड विद द solution, that is FBD, summation of fx fy for both heavy load and the wedge, and after that the answer। तो ये आपको याद रखना है कि now see over here, I'll just rub this part। now आपको ये याद रखना है when you are concerned with the normal reaction। okay, अगर ये wedge 60 डिग्री या फिर कितना भी 50 40 जो भी है 90 के नीचे ही रहेगा, if it is the wedge is making angle with x axis तो आपका normal reaction same angle with y axis करेगा। वो अपना concept है, that is 60 degree। okay, so this is 60 degree, again with y axis this will be 60 degree। okay, मतलब आपको हमेशा for confusion, for avoiding the confusion, आपको ये concept important है, वेज एंगल x के साथ है तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन y के साथ रहेगा। ओके, वो सेम एंगल पे रिजॉल्व करना है। तो आई विल डू द रिजोल्यूशन पार्ट, दैट इज दिस विल बी n2 cos 60 डिग्री, बिकॉज जिसके साथ एंगल वो cos कंपोनेंट, सिमिलरली दिस विल बी n2 sin 60 डिग्री। ओके, सिमिलरली आप इधर और इधर भी अप्लाई कर दो। So this will be n2 cos 60 degree and this will be n2 sin 60 degree। okay, so we have done till here, मतलब 4 step तक हो गया। apply friction just opposite to the impending motion। क्या है impending motion? तो हम लोग ने निकाल दिया है। so this is the impending motion, मतलब friction surfaces कितने हैं, this is the first here,
Firstly, this is the friction surface, this is the friction surface. Again, this is the common friction surface for both, or this is the friction surface. Okay, n1 matlab this is the first friction surface, this is the second friction surface, this is again the common friction surface, and this is the third friction surface. मतलब क्या, आप इधर से इधर तक आ जाओगे, इधर से इधर तक, और ये पार्ट पे जब भी चेकिंग करोगे तो आपका फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट साइड ही होना चाहिए, वो भी देखते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हो भैया। बट अभी इधर सबसे कॉमन कांस्टेंट क्या है, ये पी है, जो पी निकालना है वो हैवी लोड पे लग रहा है, आई विल राइट दिस पी। ओके, तो अभी फ्रिक्शन सरफेस लेते हैं, फ्रिक्शन के लिए मैं थोड़ा अलग कलर लेता हूं। ओके, नाउ मैंने क्या देखा, द इम्पेंडिंग मोशन इज डाउनवर्ड, इसके बिल्कुल अपोजिट आपका फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन आई राइट ओवर हियर, friction is mu into n, so that's why friction it is equal to mu into n1 over here, and when I'm concerned with the mu value for the, ये देखना mu value over here is 0.3, so I'll write 0.3 n1। ओके, अभी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखना सिंपल है। अभी मुझे क्या टेंशन है, ये तो फ्रिक्शन सरफेस है, इधर फ्रिक्शन ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, वो कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट कंसेप्ट यूज होता है। तो ये सी होगा, या वी हैव रिटन द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो ये देखना, मुझे दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो फ्रिक्शन अपवर्ड जाएगा या फिर इधर का फ्रिक्शन डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो पेयरिंग करते हैं ये और ये, इसमें ना कन्वर्जन का कंसेप्ट यूज हो रहा है ना डाइवर्जन। ओके, दे आर जस्ट अपोजिट, मतलब एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट है। अपना क्या कंसेप्ट है, कन्वर्जन या फिर डाइवर्जन। तो ये देखना, इफ वी पेयर दिस एंड दिस, इफ यू पेयर दिस एंड दिस, तो डाइवर्जेंट का कंसेप्ट है। तो डाइवर्जेंट के कंसेप्ट के ऊपर आई फाइनलाइज दिस फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज इट इज मूविंग अपवर्ड। ओके, तो ये फाइनलाइज हो गया। सो आई दिस डू दिस पार्ट, ये फाइनलाइज हो गया। ओके, so this is friction, that is mu into n2 because the surface has changed, and mu between the blocks it is 0.2, so that's why 0.2 n2 over here। okay, similarly इसके अभी ये जैसे इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये फ्रिक्शन ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह है। okay, so this is nothing but again 0.2 n2। so we have reached over here, again we have used simple concept, that is we have used a divergent use हो चुका है, because diverge हो रहा था, इधर देखना divergent। ओके, डाइवर्जेंट यूज हो रहा है बिकॉज एक पॉइंट से बाहर जाता है डाइवर्जेंट, एक पॉइंट की तरफ आता है तो कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट का कंसेप्ट यूज हो चुका है, नाउ विल गो फॉर कन्वर्जेंट, मतलब कन्वर्जेंट ही आना है। ओके, वो अपना ये है। अभी ये देखना फिर से, व्हेन आई एम कंसर्न्ड विद द फ्रिक्शन ओवर हियर इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन ओवर हियर, तो मुझे फिर से क्या टेंशन है, ये ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। ओके, मुझे वो कंफ्यूजन है। बट मैंने क्या देखा, एक बार डाइवर्जेंट हो चुका है तो दूसरी बार कन्वर्जेंट आएगा। तो ये देखना, ये और ये कन्वर्जेंट का कंसेप्ट कर रहे हैं, ये और ये, तो इसीलिए आई एम फाइनलाइजिंग दिस पार्ट। So as in when I am concerned with the friction over here, so friction over here is nothing but mu into n3, और mu का वैल्यू इधर कितना है 0.25, so that's why 0.25 n3 over here, and इधर लास्ट जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उधर चेकिंग हो जाता है। तो ये देखना, impending motion आर फ्रिक्शन and friction are opposite in direction, तो friction or impending motion are opposite in direction, so concept wise my FBD is right। okay,
और अभी आपको सिर्फ फ्रिक्शन को रिजॉल्व करना है एज इन सी ओवर हियर, सी ओवर हियर. Okay, now see, this angle is 60 degree, this line and this line are parallel. ये 60 है तो alternate से ये 60 degree रहेगा. So that's why the friction over here is making 60 degree with the horizontal. Similarly, they both are the same frictions over here. ये x के साथ कर रहा है तो ये भी x के साथ ही करेगा. तो this is 60 degree. Okay, so इसको रिजॉल्व करते हैं. This will be 0.2 n2 cos 60 degree and this will be 0.2 n2 sin 60 degree. Okay, similarly over here, this and this will be 0.2 n2 sin 60 degree. Oh, sorry. And this will be 0.2 n2 cos 60. Okay, so this completes what we say my FBD. अभी FBD हो गया मतलब 3 marks out of 8 we are done. Okay, और 3 marks प्लस 5 मार्क्स के लिए जाना है तब जाके 8 मार्क्स आ जाएंगे. उसमें से भी आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अच्छे से यूज करो. एज इन यू विल अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 एंड fy इक्वल टू 0 ओवर हियर. और इधर अननोन देखना n1 और n2 है. दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, दो अननोन है. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n2. ओके, सिमिलरली इधर आपको 3 अननोन है. 3 अननोन एज इन n2 इधर से मिल जाता है तो n2 मिल जाएगा. तो इधर भी 2 अननोन है, दैट इज p एंड n3 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n3. ओके, सिंपल है, सिंपल ही रखना है. सो आई विल डू द कैलकुलेशन पार्ट क्वाइट प्रिसाइजली. सी ओवर हियर, मैं इधर से कुछ उठा लेता हूं. ये उठा लेते हैं. कॉपी, ठीक है, मस्त में पेस्ट कर दिया. हाँ, नाउ अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओवर हियर. ओके, अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओवर हियर. देखते हैं एक बार कुछ छूट तो नहीं गया. n1 है, हाँ, कोई छूटा नहीं है. नाउ वी कैन स्टार्ट. ठीक है, इधर अभी कैलकुलेशन बनता है. मतलब क्या, summation of fx equal to 0, that is right side one is positive and left side one is negative. Okay, तो सिंपल है. तो आपको x वाले ही देखना है. मतलब x में कौन है, ये पॉजिटिव साइड जा रहा है, ये नेगेटिव साइड जा रहा है, ये भी पॉजिटिव साइड जा रहा है. तो आई विल राइट दिस इन दिस मैनर. तो n1 plus 0.2 n2 cos 60 degree. I have taken this force. ठीक है, पहले ये n1 लिया, फिर ये लिया, फिर ये लेना. ओके, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइड जा रहा है. साइन 60 डिग्री इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि और कुछ नहीं है इसमें. समेशन ऑफ fx, दैट इज एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन. ओके, तो अभी क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, n1 है, इधर n2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 0.2 cos 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इट इज इक्वल टू 0. ओके, सो व्हेन आई एम कंसिडरिंग n1 प्लस n2 एंड ये वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर पे, तो 0.2 ब्रैकेट में 0.2 cos 60 डिग्री माइनस ब्रैकेट में साइन 60. ओके, तो इट इज माइनस 0.766 equal to 0. So eventually we are getting the first condition, n1 minus 0.766 n2 equal to 0. तो इसको I'll name it as equation number 1. Everyone is clear with equation number 1? Equation number 1 आ गया. Similarly, we'll go for summation of fy. Summation of fy equal to 0. In that, upward is positive and downward is negative. We'll use that part. That is upward, downward देखा जाए. Now see over here. This is going in upward direction. This is again going in upward direction. This is again going in upward direction.
but this 500 is going in downward direction, so this will be negative. Rest all will be positive, as in I'm going for the further part, that is 0.3 n1 plus 0.2 n2 sine 60 degree plus n2 cos 60 degree माइनस कितना है 500 इट इज इक्वल टू 0. ओके, सो 0.3 n1 प्लस n2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच जाता है 0.2 साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, एंड जो माइनस है माइनस 500 है वो राइट साइड गया, इक्वल टू के राइट साइड गया, so it is plus 500. So eventually we are getting the equation that is 0.3 n1 plus, we'll solve this part, 0.2 ब्रैकेट में लेता हूँ 0.2 sin 60 ब्रैकेट complete plus cos 60. So we have the value that is 0.673 n2, it is equal to 5. Okay, so मैं क्या देख रहा हूँ, दो we have the two equation that is going to equation में आपको ax bx a1x b1x ये बता देता हूँ, टू अननोन्स के लिए जाना है, मतलब इक्वेशन में जाके दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, you will get the value of n1 and n2. So I'll just input the value accordingly. I went into equation, I went for two unknowns, the a1 value is 1, तो ये देखना ये 1 है. ओके, b1 value is 0 minus 0.766, तो minus 0.766 over here, and c1 value is 0, तो 0 input कर दिया. Similarly a2 value is 0.3, b2 value is 0.673, and c2 value and c2 value is 500, so 500 over here. So eventually after solving you will get the value of n1, that is 424.24 Newton, and n2 that is 553.83 Newton. Okay, so we have मतलब आधा पार्ट हो चुका है, आधा ही पार्ट बाकी है. So after solving the wedge with the help of two conditions of equilibrium, that is summation of fx and fy, we have got n1 and n2. Okay, similarly अभी दूसरे को उठाते हैं, ये देखना इसको उठाते हैं. कॉपी और इधर पेस्ट. ठीक है, नाउ अगेन विल गो फॉर द समेशन ऑफ fx एंड fy, बट ये देखना आपको सिंपल पता रहेगा, इतना तो लॉजिक सभी को समझता है. ये पी है, मतलब p को ही निकालना है, तो समेशन ऑफ fx पहले नहीं ले सकते. ओके, क्योंकि p इज द मेन अननोन हो गया, तो दैट्स व्हाई समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0 पहले लिया, तो अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव हो गया. ओके, तो सिंपल है, सिंपल ही रखना है. एक्स वाई वाले कितने हैं वो पहले कैलकुलेट करो. तो दिस इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगेन दिस इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस इज मूविंग इन अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वालों को आपको नेगेटिव लेना है, अपवर्ड डायरेक्शन वालों को आपको पॉजिटिव लेना है. ओके, और इसमें आप n2 का वैल्यू you will carry forward over here, as in I started with this part, that is n2 cos 60 degree नेगेटिव में. हाँ, हमेशा एक काम करो, नेगेटिव पहले मत लो, तो क्या होता है कंफ्यूजन दूर होता है. तो n3 मैंने पहले लिया, n3 के बाद -1000 लिया, फिर आपने माइनस 0.2 n2 sin 60 डिग्री ले लिया, एंड माइनस n2 cos 60 डिग्री इट इज इक्वल टू 0 लिया. ठीक है, तो इतना तो समझ रहा रहेगा आपको. n3 का वैल्यू नहीं है, n2 का वैल्यू है, मतलब n3 ही अकेला अननोन है,
So after substituting value of n2 in place of this respective part, you will get the value of n3. तो चिप सॉल्व से कर दो, तो मैं भी वही यूज कर रहा हूं. तो n3 की जगह मैंने x डाल दिया. ओके, -1000 माइनस ब्रैकेट में 0.2 इंटू n2 की जगह 553.83. ओके, उसके बाद इंटू साइन 60 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस ब्रैकेट अगेन n2 दैट इज अगेन 553.83 इंटू cos 60 डिग्री ब्रैकेट कंप्लीट अल्फा एंड कैलकुलेट तो इक्वल टू साइन आ गया 0. फिर शिफ्ट कैलकुलेट इक्वल टू. So this is the calculator procedure. So eventually we will get the value of N3, that is 1372.84 Newton. Okay, I'm highlighting the units. ये देखना units बहुत important है. 8 marks के numerical में कुछ नहीं miss करना. Okay, so we have the N3 over here. Similarly, when we are concerned with what do we say, the further part, now the unknown is remaining. दैट इज हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0. दैट इज राइट साइड जाने वाला पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड वन इज नेगेटिव. ओके, ये बहुत जगह बाकी है तो मैं इधर लेता हूँ. ओके, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट साइड वन इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड वन इज नेगेटिव. ओके, सो वी हैव द समेशन ऑफ fx में x के डायरेक्शन में ये पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है, ये भी नेगेटिव जा रहा है और ये भी नेगेटिव जा रहा है. इवेंचुअली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p. तो आई विल स्टार्ट विद द पॉजिटिव पार्ट, दैट इज n2 sin 60 डिग्री. ओके, आफ्टर दैट -0.25 n2, हाँ, -0.25 n2 over here, then again -0.2 n2 cos 60 डिग्री. ठीक है, मतलब क्या क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस. ओके, नाउ लास्टली माइनस p इक्वल टू 0. तो आपको इतना तो सिंपल पता रहेगा. वी हैव द वैल्यू ऑफ n2 विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. n2 n3 तो है ही, n2 के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा. ओके, सो n2 का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है n2 वैल्यू इज 553.83 न्यूटन. ओके, सो अभी p है, p तो मिल जाना चाहिए. n2 ही है ना, n2, हाँ, इधर थोड़ा ये हो गया, देखना फंस रहे थे हम लोग. पहला से ये n3 आएगा, सो ये n3 आएगा. तो दैट्स व्हाई दिस विल बी n3. मतलब n3 का वही वैल्यू लगेगा, दैट इज 1372.84 न्यूटन. ठीक है, so we'll get the value of p again with the help of shift solve. तो n2 मैं ब्रैकेट में क्या डालता हूँ, n2 that is 553.83 into sin 60 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस ब्रैकेट में 0.25 into n3 again that is 1372.84 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस ब्रैकेट में 0.2 into n2 मतलब 553.83 into cos 60. तो cos 60 ब्रैकेट कंप्लीट. तो ये कैसे है, ये p नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव आ गया, मतलब इतने का ही वैल्यू निकालना है. तो आई जस्ट चेक इट बिकॉज ये एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है. 8 मार्क अपने हाथ से नहीं जाने चाहिए, तो इक्वल टू दबा दिया. तो योर आंसर विल बी 81.037. तो मैं 37 को 4 कर देता हूँ और न्यूटन, दिस इज द p वैल्यू. Okay, so I have done the first sum of wedge friction and wedge friction में यही लॉजिक बनता है.
ठीक है। तो मेरे से अभी आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, ये सब का मतलब इसका इसका ये सम का सिर्फ एफबीडी निकाल के दूंगा, ये सम का सिर्फ एफबीडी निकाल के दूंगा और बाकी आपको ही करना है। एफबीडी आने के बाद यू हैव टू यूज योर फुल मोटिवेशन टू क्लियर दिस सब्जेक्ट और बैठ के करना है, बिकॉज हाई चांसेस है ये नहीं आया तो लैडर फ्रिक्शन तो जरूर आएगा। ये इनमें अनबन रहती है, लैडर फ्रिक्शन में कुछ नहीं है, शुरू होती ही खत्म है। बट वेज फ्रिक्शन में मेहनत है, वेज फ्रिक्शन अच्छे से करो तो 8 मार्क्स आ गया, क्योंकि लॉजिक क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ही करना है। ओके, मेरे तरफ से वीडियो आ जाएंगे तो उधर 20 मार्क्स कंफर्म, मतलब कंफर्म ही पकड़ो। ओके, or when you're concerned with rest 3 question, that is question number 2 3 4 5 6 में से हर एक क्वेश्चन में 8 मार्क्स का आता है और 8 मार्क्स का सब कवर करने वाला हूँ, तो 8 3 24, मतलब 24 प्लस 20 मिनिमम मार्क्स आपको 44 मार्क्स मिलने ही चाहिए। ओके, 44 मिनिमम, और उसके ये 8 मार्क्स आ गए तो इससे ही कनेक्टेड कंसेप्ट रहते 6 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स भी आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 में ये 8 6 6 का पैटर्न रहता है, मतलब आईसीआर तो आना ही है, तो इसके ऊपर बिल्डअप करना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, मैं कुछ क्वेश्चन नहीं देख रहा, बट मैं क्वेश्चन क्यों पढ़ूंगा कि हैवी लोड कौन है और वेज कौन है, इसीलिए। ओके, डिटरमाइन द फोर्स 10, ये फोर्स 10, ये 10 नहीं है, देखना यूनिवर्सिटी से ऐसी गलतियां होती है, आपके रेगुलर पेपर में भी हो गई है, अभी भी आगे, तो आपको कंसेप्ट से चिपके रहना है। ओके, दैट इज दिस इज पी, समझा। डिटरमाइन द फोर्स पी रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ 5000 न्यूटन weight up the inclined plane, the coefficient of friction for all the surface, now the surfaces for between the blocks it is 0.25, on the floor it is again 0.25, and with respect to the what we say the inclined wall surface it is again 0.25। ओके, तो वही कंसेप्ट से जाएंगे, मैंने जैसे बोला वैसे ही अभी अभी कैसे शॉर्ट में आ जाना है, दिमाग को आपको सिर्फ एफपीडी पे प्रिपेयर कर दो, एफपीडी आ गया तो यू विल बी पार्शियली डन विद द न्यूमेरिकल, फिर आपका जो स्किल है, कैलकुलेशन स्किल है, वो यूज होगा। ओके, सो द वेज एंगल इज 15, तो इधर से इन लोग ने 5 डिग्री दिया है तो 15 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्यों पढ़ना है, बिकॉज ऐसे प्रिंटिंग एरर्स आ सकते हैं, बट क्वेश्चन से आपको वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। ओके, नाउ अभी बट नेचुरल ये तो समझ रहा है, आपके वॉल्यूम से ही समझ रहा है, ये क्या है, हैवी लोड है, ये है वेज, तो मैंने पी को पहले निग्लेक्ट कर दिया। तो ये है इंक्लाइन सरफेस पे या फिर वर्टिकल सरफेस पे या फिर वॉल पे, तो ये लिफ्ट ही होगा, शिफ्ट नहीं होगा, ये लिफ्ट होगा। तो ये लिफ्ट कैसे होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, और ये लेफ्ट जाएगा तब जाके ये ऊपर हो जाएगा। तो इनिशियली मुझे क्या मिला, इसका बी का वेज का इंपेंडिंग मोशन एंड अप द सरफेस ए दैट इज हेवी लोड का इंपेंडिंग मोशन, वी हैव दैट पार्ट। ओके, विल चूज द सिंपल पाथ दैट इज, नाउ सी, ये मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूं। कॉन्सेप्ट को पकड़े रहो तो सब इजी है। ओके, नाउ इसका इंपेंडिंग मोशन निकालते हैं, चलो ऑफ द प्लेन इंपेंडिंग मोशन अगेन लेफ्टवर्ड इज द इंपेंडिंग मोशन। ओके, इधर पहले से ही मौजूद है, वो लिखते हैं दैट इज पी। ओके, वही कंसेप्ट से जाएंगे, तो अभी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का कंसेप्ट यूज होगा। तो मैं क्या करता हूं, आपको किधर जाना है, आपको जाना है अननोन की तरफ, तो ये n1 n2 n3, तो पहले
मैं वेट रिएक्शन देखता हूँ, वेट ब्लॉक ए का 5000 है, मतलब हैवी लोड का 5000 है। आई स्टार्ट विद द वेट, so this is the weight reaction, that is 5000 newton. Again clear? Again when you are concerned with b, again you are concerned with b तो उसका वेट ही नहीं है, ठीक है, वेट नहीं दिया तो कुछ मगजमारी नहीं करना। ओके, अगेन मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन के लिए जाता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन, वेज, वेज का एंगल भी इंपॉर्टेंट है, ये 15 डिग्री। तो नॉर्मल रिएक्शन को, और ये भी इंक्लाइंड है, ये कितना है 60 डिग्री है, सो दिस इज 60 डिग्री। ओके, सो आपको क्या करना है, स्टार्ट विद द नॉर्मल रिएक्शन एज यू आर डन विद द व्हाट वी से वेट फोर्स। तो ये आपका सरफेस को परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज n1, सरफेस को परपेंडिकुलर, n2, again this is the same surface, surface को perpendicular, n2 again surface को perpendicular, n2, ठीक है, n3, n3। तो आपको n2 और n1 को it is inclined and n3 it is in the y direction, so no need of resolving the n3, तो n1 और n2 को resolve करना है। तो how will you do it? With the help of inscribed angle triangle. Now see over here, I'll show in this basic diagram. So this is 90, this is 60, so this will be 30 degree. Okay, so eventually when you are concerned with the angle, so this is 30 degree, so that's why इसके दो कंपोनेंट, that is n1 cos 30 degree and this is n1 sin 30 degree. Okay, now as we have discussed earlier, so I'll go for the resolution. See over. Okay, वही कंसेप्ट में पकड़े रख रहा हूं। Now see, वेज एंगल 15 है, ये x के साथ है, वेज एंगल x के साथ है, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन y के साथ 15 डिग्री करेगा। वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, वही कंसेप्ट। सो दिस इज 15, so eventually you will get this two reactions, that is resolution जिसके साथ एंगल वो cos कंपोनेंट, दिस इज n2 cos 15 डिग्री, दिस विल बी n2 sin 15 डिग्री। ओके, सिमिलरली ये तो सेम ही है, तो ये y के साथ, तो इसने क्या गुना किया है, तो ये भी y के साथ, so this will be n2 cos 15 degree, this will be n2 sin 15 degree. ओके, तो हम लोग ने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन को प्लॉट किया। नॉर्मल रिएक्शन को प्लॉट करते वक्त आपको अननोन की तरफ जाना है, इसीलिए सरफेस 1, 2 और 3 पकड़ा, बिकॉज अननोन इधर। ओके, similarly now we will start with what we say the friction part. okay, तो ये देखना, इधर से फ्रिक्शन से स्टार्ट करता है, ये ऊपर जा रहा है तो आपका फ्रिक्शन नीचे आ जाए। ओके, और ये दिस इज ऑल्सो अ फ्रिक्शन सरफेस, ये नीचे आ रहा है, ये देखना, चलो ऐसे पकड़ता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये ऐसे पकड़ता, this is friction, that is mu for all the surface it is 0.25, तो 0.25 n1 हो गया। तो इसके लिए भी इंक्लाइंड है तो एंगल देखना, ठीक है। तो ये देखना सिंपल है, ये सेम लाइन है, इट इज अलोंग द सरफेस, ये और ये पैरेलल है, तो ये 60 डिग्री, इसलिए ये 60 डिग्री, so this is 60 degree. We'll resolve this as well, that is 0.25 n1 cos 60 degree. Again this will be right over here 0.25 n1 sin 60 degree, ठीक है। फिर अगेन एक फ्रिक्शन को प्लॉट किया तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, एक बार कन्वर्जेंट एक बार डाइवर्जेंट। ओके,
नाउ सी ओवर हियर, ये नीचे आ रहा है, ओके। तो मुझे क्या कंफ्यूजन है, ये राइट जाएगा ये नीचे, बिकॉज ये ऐसे आएगा, ये देखना कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट का यूज हो चुका है, सो ये कन्वर्जेंट, ठीक है। तो सिंपल है, सिंपल ही रखना है, ठीक है। अभी ये देखना, ये देखो आप, ये समझ लो आप, ये ऐसा है, ये एंगल 15 है, दिस एंगल इज 15, ये और ये मुझे देखना सिमिलैरिटी से आगे, तो ये 15 है इसलिए ये 15 है, सो दिस इज 15, तो मैंने एंगल निकाल लिया, और इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 0.25 n2, और n2 रहेगा, और इसका नाम क्या रहेगा, x है, तो 0.25 n2 cos 60 degree, cos 15 degree, and over here 0.25 n2 sin 15 degree, ठीक है, sin 15 डिग्री। तो ये देखना, इसको सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखना, ये डाउनवर्ड जा रहा था, ये जैसे ये और ये अपोजिट है, वैसे ही फ्रिक्शन भी अपोजिट है रहेगा, तो इसीलिए मैंने अपवर्ड लिया, ये वाला फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का नाम भी है 0.0.25 n2, इसके भी दो रिएक्शन, ठीक है। तो ये देखना, ये x के साथ 15 कर रहा है, तो ये भी x के साथ 15 करेगा, तो दिस विल बी 15, इवेंचुअली दिस विल बी 0.25 n2 cos 15 degree, and this will be 0.25 sin 15 डिग्री। और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के कंसेप्ट के हिसाब से कन्वर्जेंट हो गया है, डाइवर्जेंट बाकी है, तो ये देखना, ये ऊपर जा रहा है, तो बट नेचुरल ये डाइवर्जेंट का कंसेप्ट, तो डाइवर्जेंट का कंसेप्ट के हिसाब से दिस विल बी 0.25 n3, और ये हो गया, दिस इज वी आर डन विद व्हाट वी से फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको हैवी लोड पे समेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई करना है, जैसे मैंने पहले बताया, सिमिलरली समेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई इधर अप्लाई करो, यू विल इवेंचुअली आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट इवेंचुअली डन विद द पी वैल्यू, यू विल गेट द पी वैल्यू, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलो आगे जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो है ये केजी है, इसको वेट में कन्वर्ट करना है, तो ये हैवी लोड है, इतना तो समझा है, चलो। मास है 100 केजी, तो आपका W इज इक्वल टू एम जी, सो दैट इज 100 इंटू 9.81, तो 981 न्यूटन इज द वेट ऑफ द ब्लॉक ए, ठीक है। तो इतना तो समझ रहा है, ये स्टैटिक है, ये हिलने नहीं वाला है, मतलब ये अंदर जाएगा तब जाके लिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल सरफेस पे, मैंने आपको बोला था पहले से ही वीडियो से कि वर्टिकल सरफेस पे लिफ्ट होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे शिफ्ट होता है, तो इधर लिफ्टिंग का ऑपरेशन है, मतलब क्या, व्हेन यू आर कंसर्न विद द इंपेंडिंग मोशन, दिस इज स्टैटिक पार्ट, ओके, ये अंदर आएगा तब जाके ये लिफ्ट होगा, ओके। सो इवेंचुअली वी हैव गॉट द इंपेंडिंग मोशन, ओके, इंपेंडिंग मोशन। तो आपको ये सी जो स्टैटिक है उसकी जरूरत ही नहीं है, क्या, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो आप फिर सिर्फ आपका फोकस किस पे लगा देंगे, आपका फोकस सिर्फ आपका ये ए है, ये बी है, and the inclination is 10 degree, okay, and we have the impending motion, so this is the impending motion of the block A, that is nothing but what we say, ये भी impending motion है, ये थोड़ा नीचे लेते हैं, and now ये किधर है, ठीक है, गया किधर को भी, this is impending motion। now चलो ये भी है,
So now see how many surfaces of contact surfaces are there? 1, 2 and 3. Let's check for the mu for all the surfaces. It is 0.25, that is the incline, और कुछ ये वेज है बी, ये है ए, दैट इज हैवी लोड है. ओके, तो जो पहले से मौजूद था वो पी लगा दिया. ओके, तो आई कम टूवर्ड्स द अननोन, दैट इज ये n1 रहेगा, ये n2 रहेगा और ये n3 रहेगा. मतलब इससे सिंपल सम तो आना ही नहीं है. n1 n2 अपोजिट n2 और ये सरफेस को परपेंडिकुलर n3. ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ने चेकिंग स्टार्ट किया इम्पेंडिंग मोशन के बिल्कुल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन को किसको रिजॉल्व करना है, इसको रिजॉल्व करना है. ये देखना सिंपल है. ये सरफेस को परपेंडिकुलर है. ओके, सो ये 10 है, दैट्स व्हाई दिस इज 10. तो ये आपका 80 डिग्री आएगा अकॉर्डिंग टू द इंस्क्राइब्ड एंगल ट्रायंगल्स. सो दैट्स व्हाई n3 इज मेकिंग angle of 80 degree with the horizontal 80 degree. तो इसके भी दो कंपोनेंट हैं. ओके, n3 cos 80 degree and n3 sin 80 degree. ओके, सो वी हैव द फर्दर पार्ट एज इन अभी नॉर्मल रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन का रिजोल्यूशन भी हो गया है. वेट कंपोनेंट डालना भूल गए तो इधर ही वेट है दैट इज 981 न्यूटन. ओके, तो वेट भी डाल दिया. अभी क्या स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन. ठीक है, तो ये देखना ये आपका फ्रिक्शन दैट इज 0.25 n1 क्योंकि फर्स्ट सरफेस है. ओके, तो मुझे कंफ्यूजन क्या है, ये राइट साइड जाएगा या फिर लेफ्ट साइड, बट अभी ऐसे आएगा कन्वर्जन, तो ये ऐसे आने वाला है. ओके, सो दैट्स व्हाई the conversion that is 0.25 and 2 रहेगा. ओके, इसके बिल्कुल अपोजिट दिस विल बी 0.25 and 2 अगेन. एंड फिर से एक बार कन्वर्जेंट हो गया तो ये सरफेस डाइवर्जेंट, अब ये इधर जा रहा है तो ये मतलब ऐसे जाएगा. ये देखना ये ऐसे जाएगा. ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो डाइवर्जेंट मतलब क्या, ये ऐसे और ये ऐसे, तो डाइवर्जेंट. तो दिस विल बी 0.25 and 3. और आपको एंगल वाइज देखा जाए ये 10 है तो ये 10 डिग्री जाएगा. सो दिस 10 डिग्री, तो इसके भी दो कंपोनेंट, तो 0.25 and 3 cos 10 डिग्री and 0.25 and 3 sin 10 डिग्री. ठीक है, तो मैं क्या चेक करता हूँ, आई चेक द नंबर ऑफ अननोन्स एंड नंबर ऑफ अननोन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज नथिंग बट n1 है, इधर n2 है, n2 तो आ जाएगा, n3 है और p है. मतलब चार कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से चार अननोन मिल जाएंगे. अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन ब्लॉक ए, आफ्टर दैट गो फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन ब्लॉक बी. ओके, दैट इज द वेज पार्ट. ओके, तो ये आपका आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द सोल्यूशन. सिमिलरली ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ये हार्ड पेपर में आया गया है, बट दिस इज ऑल्सो सिंपल, सेम ही कंसेप्ट पे चलेगा. ठीक है, तो फिर से आई एम सीइंग दिस इज 200, दिस इज वेटलेस मतलब वेट ही नहीं है. ठीक है, तो दिस इज 200, दिस इज वेटलेस, so दिस इज वेज एंड दिस इज हैवी लोड. एंड व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद हैवी लोड, ये वर्टिकल पार्ट है, मतलब लिफ्ट होगा, इसीलिए ये ऊपर जाएगा. और ये ऊपर कैसे जाएगा, ये लेफ्ट आएगा तब ऊपर जाएगा. ओके, सो वी हैव व्हाट वी से वी आर डन विद द इम्पेंडिंग मोशन. तो इम्पेंडिंग मोशन है तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये थोड़ा पेचीदा प्रॉब्लम है, इसको कैसे जस्टिफाई करते दिखाता हूँ. ठीक है, क्यों है, बिकॉज ये सरफेस 75 पे इंक्लाइन है
और ये सरफेस 15 पे इंक्लाइन है। तो वही दिखाता हूँ पार्ट। सी दिस सरफेस 15 पे इंक्लाइन है और ये सरफेस 75 डिग्री पे इंक्लाइन है, इसलिए ये लेना चाह रहा था मैं। ओके, एंड द अदर पार्ट दैट इज द वेज, जो वेटलेस है, ऐसा ही है। ये स्ट्रेट है, दिस इज इंक्लाइन। Okay, now again when you are concerned with the angle, so this is 15. Okay, now I'll show this is nothing but the f force। f force निकालना, पहले p था, p f है, कोई दिक्कत नहीं है। and this is the impending motion and ये आपका impending motion। वही कंसेप्ट से अननोन की तरफ आना है। अननोन की तरफ मतलब आप इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर तक आना है। उसके पहले वेट रिएक्शन निकाल दे देते हैं। So weight is always perpendicular to the base surface. This is 200 Newton and this is the heavy load and we don't have weight for the wedge. Okay. So without wasting any further time, we'll go for the normal reaction. Normal reaction कुछ अलग कलर से बताता हूँ। So we have the normal reaction. Normal reaction is perpendicular to the surface. So N1 perpendicular to the surface. N2 perpendicular to the surface. N2 perpendicular to the surface. N3। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। वही कंसेप्ट, ये x के साथ है तो ये y के साथ रहेगा। वही कंसेप्ट पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो दिस एंगल इज 15। ओके, सो वी विल हैव टू कंपोनेंट्स आउट ऑफ इट। तो n2 cos 15 डिग्री एंड n2 sin 15 डिग्री। सिमिलरली ये भी n2 ही है तो ये 15 डिग्री रहेगा। इसके भी दो कंपोनेंट, n2 cos 15 डिग्री, n2 sin 15 डिग्री। ओके, सेपरेशन कर दिया। फिर से N1 देख लो, N1 का ऐसा, ठीक है। ये एंगल 75 है, ये 90 है, so this will be 15 degree। okay, so eventually N1 is making 15 degree with x-axis, so you'll have two components out of it। so N1 cos 15 degree and this will be N1 sin 15 degree। okay, सो फिर बाद में नॉर्मल रिएक्शन भी हो गया, नॉर्मल रिएक्शन का रिजोल्यूशन भी हो गया। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग इज नथिंग बट द फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन मैंने इधर से स्टार्ट किया, ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे, और कन्वर्जन के कंसेप्ट से ये इधर आ जाएगा। सिमिलरली इसके बिल्कुल अपोजिट इधर, और डाइवर्जेंस के कंसेप्ट से इधर जाएगा। इधर जा रहा है मतलब इंपेंडिंग मोशन के अपोजिट है। सो आई हैव डन द चेकिंग पार्ट एज वेल। ओके, तो यही देखते हैं। चलो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को ब्लू कलर लेता हूँ। तो ये फ्रिक्शन है, ठीक है। दिस इज 15। व्हाई? बिकॉज दिस, सॉरी, दिस इज 75। 75। व्हाई? बिकॉज दिस इज 75 तो ये 75 और अलोंग द सरफेस है। तो इसके भी दो कंपोनेंट, दैट इज इसका नाम क्या है? इसका नाम है 0.25 म्यू इंटू n1, 0.25 n1, बिकॉज सब सर्फेसेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है। So this will be 0.25 cos 75 degree and this will be 0.25 sin 75 degree।
ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिट, मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ द कन्वर्जन, ये ऐसे आ रहा है तो कन्वर्जन ऐसे ही आएगा। तो इधर से मैंने फ्रिक्शन पकड़ लिया और इसका नाम क्या रहेगा, 0.25 n2। ओके, एंड बिकॉज this is 15, so this will be 15, so eventually this is 15। तो इसके दो कंपोनेंट, तो 0.25 n2 cos 15 degree and 0.25 n2 sin 15 degree। Okay, so what we have, the x component and the y component, and when we are concerned with the further part, that is nothing but the friction। तो फ्रिक्शन इसके बिल्कुल, ये सेम सरफेस है ना, बिल्कुल अपोजिट। ओके, सेम नेम, 0.25 n2, अगेन एंगल आपको सेम, ये 15 डिग्री, तो 0.25 n2 cos 15 डिग्री एंड दिस विल बी 0.25 n2 sin 15 डिग्री। ठीक है, एक बार कन्वर्जेंट हो गया तो एक बार डाइवर्जेंट होगा, तो डाइवर्जेंट के कंसेप्ट से ये आपका 0.25 n3। So this completes our checking as well as FPD of 3 marks. Further part is expected from you and this is the sum you need to do it। Okay, तो ये W है, ये W अननोन है, तो आपका इधर N1 N2 और N3। ठीक है, you have to solve this part। Thank you, thanks for watching and stay tuned for the further videos। Okay।